ग्राफ वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी इंक्लूड कर लेना, जो जहाँ पे जो ग्राफ सूट करता है उसको ऐड करके इंक्लूड कर लेना। एंड बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर सेइंग दैट NHRC ऐप में डिसेबिलिटी पर्सन्स आर फेसिंग सम काइंड ऑफ बैरियर और ऑब्स्टेकल, इट विल उसी समय जूरी मेंबर को क्लिक करेगा व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, यू आर पॉइंटिंग आउट योर थिंग्स, राइट, they are NHRC officer, they will be very keen to know what kind of obstacle you have found out, ठीक है, तो वो सिर्फ चीज को बहुत क्लियरली लिखना, ठीक है। इन फाइंडिंग्स के लिए एक स्लाइड, एक से दो स्लाइड, एंड रिकमेंडेशन के लिए एटलीस्ट 2 स्लाइड, ठीक है, एंड देन एंड विथ योर कंक्लूजन, ठीक है। इफ अगर आप लोग टाइम पे शेयर करते हो तो रिकमेंडेशन फाइंडिंग्स पे मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगी, ऑब्जेक्टिव इफ यू वांट आई कैन रिफाइन इट, अदरवाइज यू कैन गो अहेड, ठीक है। Excuse me, ma'am. Yeah. Can you just let us know that how to put forward the findings in the PPT? Sorry? Ma'am, can you just let us know that how we have to put the findings in the PPT? Before recommendation, findings is very crisp. Like no, you don't need to explain the entire thing. For example, your if NHRC का web is not, synchronized with this kind of feature, this would be a natural finding. ठीक है? For example, a kind of feature, or for example, chat box, or anything, any app or any website. If your findings is this app do not have this feature, your recommendations would be naturally will get synced with your findings. Na? It is recommended that this website can also integrate this feature. ठीक है? Make it very crisp. It unsaid rule and in general note कि आप जब PPT बनाओगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज करोगे, rather you will be speaking out more, explaining things more, ठीक है। Prepare your divide your presentations among the group and prepare your script, while presenting. This is virtual presentation, right? So you can use the script. Ma'am, when we will present the findings, then also we have to put the pie charts. No, pie chart आपका स्टडी में रहेगा। अच्छा, बिफोर फाइंडिंग्स, तो फाइंडिंग में नो पाई चार्ट नो वर्चुअल, इसीलिए मैं बोली थी ना, फाइंडिंग्स आपके बहुत क्रिस्प रहेंगे, 1 और 2 स्लाइड, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन आपके बहुत क्रिस्प रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फाइंडिंग बहुत कुछ चीज के बाद में इलाबोरेट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे जो क्रिस्प पे पॉइंट है हेडिंग से वो लिखो, उसके बाद बाकी आप एक्सप्लेन करो व्हाइल प्रेजेंटिंग, ओके, ठीक है। Any question? Any more query do we have? अभी also we will mention differences. लास्ट में रेफरेंसेस एक स्लाइड का, ठीक है, डोंट काउंट इट, रेफरेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड एज लिमिट और समथिंग, तो वो एक्सक्लूडेड है। मधुमिता, and one more thing, ma'am. Yeah. Where we should attach our questionnaire, like the entire questionnaire. In PPT you don't need to attach your questionnaire, ठीक है। If you can attach the questionnaire if अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से बने हुए हैं तो attach the question in annexure, ठीक है, with your research paper. With your research paper, with the responses, or just the questions? No, not just the question, not with the responses. गार्गी, भारतीय राज्य व्यवस्था काल में हम लोग सिलेबस देखे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोगों को क्या पढ़ना है, यही 22 मार्क सिलेबस है। यही 22 मार्क में जो है हम लोगों को पॉलिटी में पढ़ना है, इसी 22 मार्क में। What are you there? सब है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब है, इस 22 मार्क में ही सब है। Yes, ma'am. Can you turn on your camera? One thing I wanted to ask, are you aware, is there any time limit for the presentation of the research paper? Presentation वो तो guidelines में आपको बताया गया होगा, it is 15 minutes. After 13 minutes you will have warning. Okay. Haven't you read the guidelines? I read that. Read it once before presenting. किसी का कैमरा ऑन है जो बैकग्राउंड में बहुत नॉइज क्रिएट कर रहा है।
नागरिकता का वर्णन भारतीय So turn off your mic, not camera. मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में? What's that? आयोग का वर्णन किस भाग में? What's that? Are you there? का वर्णन किस भाग में? आपात उत्पन्न का वर्णन किस भाग में? केंद्र What's that? Are you there? चर्चा किस भाग में? Yes, ma'am. Can you hear me? No? Yeah. Can I request you to turn on your camera? Yes, ma'am. इसी प्रकार से जो है आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब इस भाग में क्या? Okay. Can you tell me what is your contribution in the paper? In which part you have worked? Ma'am, I worked on the finding parts under the objective 1 of the policies and the laws relating to the disabilities. क्या है निर्वाचन आयोग? Okay. And with whom you have been working? जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, Ma'am, With whom you have been working? तो वहाँ पर समझेंगे मौलिक अधिकार क्या है। ma'am, can you क्या मौलिक अधिकार है? ask again? I can't hear. With whom you have been working, or you are I working worked directly. exclusively? I mean, you were only one who was working on findings. होते हैं। Yes, ma'am. आपको एक-एक करके जो है बाबू समझाएंगे। जो सो रही है सो Okay. What is gone is gone. So you don't have much time. I would. Objective one. Sorry. Ma'am, she was working with Gargi in the objective 1 or in the findings. She did contribute. She did. Not entirely, but she did. She did her part. Whether it was correct or not, we did the refining part, but she Okay, did. no problem. देखो, if you don't know the things, not a problem at all. If you are not willing to learn, it's a problem then. ठीक है? Versa, please keep your camera turned on. दिमाग एकदम प्रॉपर वे में काम करे। Even not for this session or this thing. I mean, after this college, you will start your career in internship and learning. Research is also a career option. If you are interested, it's okay. If you are not interested, then also it's okay. But मतलब इतना गिव अप नहीं करना है कि ठीक है छोड़ दो, इतना लाइटली चीजें नहीं लेना। तो होता है बिकॉज एक्चुअली लास्ट में वो हमारे हैबिट में आ जाता है कि ठीक है कोई तो कर ही देगा, एंड एट द एंड यू विल बी लूजिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं जो करता है मतलब लग इतना भी अनफेयर नहीं रहता। ठीक है, तो if you have contributed, take proud on yourself. You don't need my validation, or anything. If you are satisfied with your work, this is your kind of validation you need. कि ठीक है, at the end, if you win, if you lose, doesn't matter. But I should be satisfied that I have given my best. ठीक है, this is my core message to every intern I have been interning since beginning of my career. ठीक है, and the rest is your call. ठीक है, I don't think there is much. We don't have. We have time to waste. So I request to start working on PPT. Ma'am, can I ask one thing? Yes, please. Ma'am, you mentioned about the research questions. So do we have to put this in the research paper as well? Yes. Resource Ma'am, can you as well as PPT. Can you just let us know how to make research question? Okay, Like no what? problem. Yeah, it's nothing. It's research question is like. It's tentative research question to your objective only. For example, if your first objective is to study the existing laws, legislative coming for person with disability, then your question will naturally turn out what are the existing laws, policy scheme. ठीक है, just frame your objective in question form. ठीक है, and still if you have any problem, I am giving freedom to anyone. If you are working, for example, if you are working on objective or refinement part, if you think कि ठीक है इसको ये clear है, अब इसको थोड़ा refine करने की जरूरत है जो आप नहीं कर पाए, just send it to me, मैं करके दे दूँगी। ठीक। Okay, ma'am. Ma'am, one more thing. If we have noticed the literature review. Notice literature review is बहुत बड़ा लिखा है आपने, इतना बड़ा नहीं लिखना था। You are But ma'am, but it's under word limit only, 4,000 word only. हाँ ठीक है, लेकिन फिर आपका नीचे वाला पार्ट वो छोटा हो गया ना, एनालिसिस पार्ट। आपने एनालिसिस फाइंडिंग को कंबाइन कर दिया। अगर कुछ रिव्यू लिटरेचर रिव्यू में एटलीस्ट बहुत सारे आपका सेकेंडरी सोर्सेस है तो उसको स्टडी में लेके आ जाओ। ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं है मैम, ऐसा कोई सोच जाओ वहाँ से यहाँ ले आए क्योंकि
आई हैव हर्ड समवेयर कि वो ईयर वाइज होता है, लाइक पहले जो सबसे 2019 का पेपर होगा उसको पहले रखना है, फिर 21-23 का, ठीक है। ही इट इज नॉट लाइक दिस, सो लेट मी नो कि वो ऐसा है या फिर जैसा है, लेट इट क्रोनोलॉजी मेंटेन करोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा उसको डाल दें। क्रोनोलॉजी अगर देखो एट द एंड इट्स कुछ सेंस बनना चाहिए, ठीक। भारतीय संविधान के भाग 1 थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए ना, 1 मिनट। ड्यूरेशन जो है इस ईयर में ये हुआ, फॉर एग्जांपल आई एम एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, तो मैं 1999 का बात करूंगी, 2016 का बात करूंगी, स्कीम्स का बात करूंगी। देन फॉर एग्जांपल बजट में आप लोग ने फंड एलोकेशन की बात की है, 2018-19 के बाद कोई आई मीन डेटा ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एवरीबॉडी इज नोट कि वी हैव लाइक 2026-27 का भी बजट आ चुका है, ठीक है। तो वहां पे तो आप इन्फॉर्मेशन का गैप छोड़ रहे हो ना, टू पॉइंट आउट यूरी ये यहाँ का हुआ। और सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप कर देते budget allocation. तो one graph I didn't saw the graph. 2018-19 का एक टेबल में था, वो बिल नहीं पता था। सही है। हाँ, तो उसमें और क्या एडिशन मैम? लाइक आपका in 2026 राइट? तो लेटेस्ट तो वही डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालो तो पूरा डालो, ठीक है। अगर कुछ ये अगर मतलब इन्फॉर्मेशन गैप का कहीं मत छोड़ो, चाहो आप कम इन्फॉर्मेशन दो लेकिन गैप मत छोड़ो कि टू पॉइंट आउट पीपल की कहाँ यहाँ के बाद कहाँ है, वहाँ के बाद कहाँ है। अच्छा ओके मैम, वन मोर थिंग कि लिटरेचर रिव्यू में हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव वाइज उसको सेग्रीगेट कर दिया। जैसे ऑब्जेक्टिव पर जो लीगल फ्रेमवर्क का था तो उसमें 2012 भी है, 21 भी है, 24 भी है। और उसके बाद जब हम लोग उस पर पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं सेकेंड वाला डिजिटल वाले पे, तब उसमें 2012 भी है, 2014 भी है, 2026 भी है। तो इससे तो हम लोग का क्रोनोलॉजी खराब हो गया। पर अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग का कुछ सेंस मीन कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में अगर आप लोग यू आर टॉकिंग अबाउट स्कीम and then you are talking about digital aspect, no problem. मतलब I told you that it at least it should make some sense. If it is making some sense, it's okay, no problem. okay. Any more question to yeah? मैम अभी आपने मेंशन किया ना वो 2019 वाला और डेटा रिसर्च गैप वाला। मैम मुझे मतलब मैंने जो ये वाला डेटा उठाया है वो CRPD वाला ही है, और मैंने स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए काफ़ी जगह गो थ्रू किया। मतलब आपने बताया था NHRC भी देती, तो मैंने उधर भी रिपोर्ट में देखा तो उधर स्टैटिस्टिकल डेटा था नहीं ज़्यादा। तो मुझे 2019 के बाद आप ढूंढोगे, यू आर टॉकिंग अबाउट बजट एलोकेशन। यस मैम, दैट बजट एलोकेशन को तो आप बजट डाउनलोड कर लो, उसमें एक पार्टिकुलर बजट में कितने अमाउंट एलोकेट किया है वो मिल जाएगा। तो मैम दैट मीन्स वो यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट बजट तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे बजट तो आपको यूज करना ही चाहिए। इनफैक्ट आप लोग को लास्ट टाइम भी बोला था, खैर आप लोग ने किया नहीं इसको, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा गैप आई मीन ये सब चीज एंगल को टच नहीं करना चाहिए। आई वांटेड यू टू रीड द बजट, आई मीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, कि इस ईयर कुछ प्रोविजन थे डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो वो खैर जो रह गया वो रह गया, अगर डाल सकते हो तो डाल देना। पार्टिकुलर स्कीम या मनरेगा का बात कर लो, कोविड-19 में 60,000 करोड़ हुआ था उस ईयर में, उसके नेक्स्ट ईयर में कैसा था पैटर्न वगैरह तो मिल जाएगा आपको। अगर आप कहीं पे आपको जूरी मेंबर पॉइंट आउट कर ले कि व्हाट आफ्टर 2018-19 एंड यू सेड you didn't find, I mean it's showing that you don't have like this is basic thing and you don't know about this, वो आप पूरा तो कंप्लीट करो और नहीं तो मत डालो। ऑल्सो मैम प्लीज चेक द रिकमेंडेशंस, क्योंकि ऐसा ना ओवर हम लोग NHRC को पॉइंट आउट कर देंगे तो वो ज़्यादा उनको लगेगा, तो वो ज़्यादा उस चीज़ पे क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल करेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड ना, पहले अपना फाइंडिंग्स को अपना थोड़ा क्लियर कर लो, फिर रिकमेंडेशंस आप मुझे अलग से सेंड कर देना, ठीक है। साइमल्टेनियस टास्क वर्किंग ऑन रिकमेंडेशंस आप
जस्ट इफ इट इज, अगर कोई बहुत वैगली रिकम आ रहा है तो उसको भी जरूर रिफर कर देना, ठीक है। वो क्यों दे रहे हो आप मुझे सेंड कर देना, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ऑल्सो आई वांटेड कि आप उसको रिफर करो। लास्ट टाइम आई सेड ए लिंक जिसमें मिनट्स था एनएचआरसी की मीटिंग के, जिसमें एनएचआरसी की बिल्डिंग की ऑडिटिंग हुई थी, आप लोग ने उसको रिफर ही नहीं किया कहीं। आप लोग को करना चाहिए था, आप लोग अभी भी कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एनएचआरसी का इनिशिएटिव था। यू आर टॉकिंग अबाउट 50% एनएचआरसी की, आई मीन गवर्नमेंट बॉडी। आपने सारा डेटा को रेफरेंस कर देना कहाँ से उठाए हो, कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर नॉट पीडब्ल्यूडी इंक्लूसिव। अभी अगर एनएचआरसी को बताओगे 2000 इसमें जो ऑडिटिंग हुई थी, ऐसे बिल्डिंग इटसेल्फ वाज नॉट फाउंड पीडब्ल्यूडी इंक्लूसिव, ठीक है। तो वो एटलीस्ट रिफ्लेक्ट करेंगे ना, आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में होलिस्टिकली पढ़ा है, एनएचआरसी के इनिशिएटिव को देखा है ना। फिर द थिंग इज कि जितना एनएचआरसी को पॉइंट करेंगे वो भी उतना ही पॉइंट बैक करेंगे उस चीज पे। और अगर दैट्स ट्रू, लेकिन तो हम इफ यू अगर सपोज अगर आप इसको एनएचआरसी को प्रॉपर रिसर्च बैक से पॉइंट आउट करो तो ठीक है, अगर नहीं तब नहीं। अगर आपका रिसर्च प्रॉपर नहीं है तब तुम कोई पॉइंट मतलब नहीं है ना पॉइंट आउट करने का। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग कि आप एनएचआरसी के मिनट्स के बेसिस पे ही बात करो, ठीक है, कि इस ईयर में एनएचआरसी की बिल्डिंग की ऑडिटिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें ये इश्यूज आए थे एंड गवर्नमेंट और ये रिकमेंडेशन तो with some time all government like NHRC ने like they started from their own home, ठीक है। taking the example of NHRC, are the all built government officers should undertake auditing if their premises PWD friendly or not, and after some regular interval, ठीक है, after working like say 5 years or 2 years or any regular interval, they should again reconduct the auditing thing, ठीक है। तो देन इट शोस ना कि आप लोग ने अपना जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हो, आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो, है ना। मैम दिस इज द लेटेस्ट ऑन 28 जनवरी का जो आया है। आई विल शेयर इट विथ यू टू कंफर्म कि वही वाला है ना जो यू आर स्पीकिंग अबाउट। लास्ट टाइम मैंने लिंक शेयर किया था, आपने कॉपी नहीं किया। मैम किया होगा मैम, वही प्रॉब्लम है ना, मैंने बहुत कुछ शेयर किया था, बहुत कुछ बताया था, आप लोग ने उसी को भी टच नहीं किया। मैम वो मिस उससे एक्स्ट्रा आप लोग को जाने की जरूरत ही नहीं था। फ्रॉम द स्टार्टिंग आई हैव शेयर फ्यू थिंग्स, ठीक है, उस चीज को रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। बट लाइक मतलब बट ये प्रॉब्लम भी होती है, यू वांटेड इट टू गो आई मीन कवर एवरीथिंग एंड यू एंड अप कवरिंग नथिंग, ये प्रॉब्लम होती है। देख लेना एनएचआरसी के मिनट्स में, ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर देन कम टू मी, आई विल से। अदरवाइज वेट, लेट मी फाइंड इट। Ma'am, I have it. I'll You have resend it. Okay, Yeah. then you set it with everyone if you have it, ठीक है। So is there any more question you have? मैम वो मेन मीटिंग में एक बार एक लड़की ने पूछा तो था शैली मैम से एनेक्जर के बारे में, तो शैली मैम तब तो एनेक्जर के लिए मना कर दी थी कि एनेक्जर रहने देना, मतलब रिसर्च पेपर में मना कर दी थी एनेक्सर के लिए फॉर क्वेश्चनर। हाँ, उन्होंने भी क्वेश्चनरी प्रिपेयर किया था, अगर किसी को पता हो तो याद हो तो परसों की बात है शायद। उन्होंने एनेक्जर में कहा था कि एनेक्जर वाला सेक्शन तुम रहने ही देना रिसर्च पेपर में। मना कर दिया था एनेक्जर के लिए, क्लियरली मना कर दिया। लेट इट बी देन मत डालो, कोई बात नहीं।
if they But ma'am, there are questions which we have not included in our research thing, मतलब the stats, but they are very important one. So I feel कि questionnaire हम लोग को अपना question तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि इतना हमने किया है. We'll attach if they want to see, they say, if they don't, ignore it. yeah, exactly. And if you want I mean कुछ questions जो है, for example आप like if your question is like if you face any kind of problem in accessing this app, this is your one question and you have analysis, तो आप कहीं ना कहीं अपने research paper में add कर ही रहे हो ना. Like it for me it's making no sense कि why they had denied कि NXT include ना करो. Ideally NXT में ही आते हैं, ठीक है. I have no I mean I'm not aware why they have denied. Ideally ये होना चाहिए था, ठीक है. But if they are saying it कि मत डालो तो मत डालो, ठीक है. और आपको लगता है कि कहीं पे ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है, हमें हाईलाइट करना चाहिए, तो आप अपने स्टडी एनालिसिस के पार्ट में आप उसको बिल्कुल बताते समय, if when you are presenting कि this was your article, we have asked this question and this was the response which we received, ठीक है. आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है. प्रोवाइडेड यू स्टिक टू योर टाइम. प्लीज रिकमेंडेशन पार्ट के लिए आप लोग थोड़ा टाइम रखना, 1 मिनट और कुछ सेकंड का तो बफर पीरियड ही लेके चलना, ठीक है. कोई टेक्निकल और मेक श्योर कि सबका कैमरा एवरीथिंग यू आर इन आई मीन कनेक्टेड विद गुड इंटरनेट हो, ठीक है. टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आने चाहिए, यू शुड बी ऑडिबल, ठीक है. क्योंकि कोई भी ये सब चीज़ के लिए आप लोग का पर्सनल थिंग के लिए, टेक्निकल इश्यूज के लिए कोई कंसिडरेट नहीं होगा, ठीक है. और मैम प्रेजेंटेशन के बाद वो जूरी मेंबर्स क्वेश्चन भी पूछेंगे? अगर कहीं पे भी गैप रहेगा तो बिल्कुल पूछेंगे. दे कैन नॉट, ठीक है. तो इसका कुछ रूल नहीं होता, लेकिन आई थिंक यू मे फेस सम क्वेश्चन बिकॉज यू आर पॉइंटेड आउट एनी टाइम, ठीक है. तो यू कैन हैव सम क्वेश्चन, तो उस पार्ट को तो आप प्रिपेयर ही रखना. बट इट्स नॉट लाइक कि कोई भी आई मीन एक पर्टिकुलर पर्सन ही रेस्पॉन्स करे, ठीक है. कोई आप लोग की कोई भी टीम मेंबर रेस्पॉन्स कर सकता है. लाइक जूरी मेंबर का नॉट लाइक कि वी वांट दिस पर्सन टू रेस्पॉन्ड, ठीक है. एनीवन अमंग यू कैन रेस्पॉन्ड, ठीक है. और मैम मेन प्रेजेंटेशन में अगर ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा भी तो लिखा हुआ है जिस हिसाब से बता रहे हैं सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तो मैं ये सोच रहा था, ओपिनियन मेरा ये था फिलहाल कि अगर हम कम बंदे 2 ही करें या मैक्सिमम तो मैक्सिमम 3 ही प्रेजेंट करें तो ज़्यादा कनेक्टेड लगेगा, क्लटर्ड नहीं लगेगा वो. हाँ लेकिन बट इफ दे आर आस्किंग इफ इट्स मैंडेटरी फ्रॉम देयर एंड कि ईच मेंबर हैज टू प्रेजेंट, तो लेट देम ना, ठीक है. और इफ यू फील कि ए पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन मेकिंग प्रेजेंटेशन, तो आप उनको छोटा सेक्शन दे दो, है ना, जिसमें जस्ट रीड कर लें. लेकिन मतलब ये इसको ना बहुत ज़्यादा आई मीन इम्पोर्टेंस लेना भी है, लेकिन ऐसे भी बहुत इम्पोर्टेंस लाइक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डू एंड डाई. ये इसको ऐसे लर्निंग प्रोसेस लो, ठीक है. इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन प्रेजेंटिंग, तो इसको ऐसे लर्निंग लो कि लेट्स डू इट एंड अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, ठीक है. आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों की होता है पब्लिक स्पीकिंग फियर एंड ऑल, बट दिस इज हाउ इट इवेंचुअली आई मीन एंड, ठीक है. एंड आई होप जो हो गया वो हो गया. फास्ट इज फास्ट, वी कैन नॉट चेंज. आई एक्सपेक्ट ईच मेंबर ऑफ दिस टीम टू डेडिकेटेडली वर्क आई मीन इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स और मेक बेस्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है. तो मतलब आप अपने पोर्शन डिफाइन करो, डिज़ाइन कर दो. कुछ लोग अच्छे पिक्चर्स, बैकग्राउंड इमेजेस एंड ऑल उस पर काम कर दो, कुछ प्रेजेंटेशन पे काम कर दो. डिवाइड योर वर्क और स्टार्ट कर दो, ठीक है. जस्ट नेक्स्ट फ्यू आवर्स, उसके बाद फिर आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इट्स ऑल योर विश, आप कोई साथ कनेक्ट रहना चाहो नहीं रहना चाहो, है ना. इवन इफ यू डोंट लाइक मी, नहीं दिखूंगी कल के बाद, है ना. चलो नहीं ऐसा नहीं है मैम, मतलब हमने काफी एंजॉय भी करा है साथ में. मीटिंग में जब हम डिस्कशन अपनी कर लेते थे तो एंड में ऐसे स्मिता हमें रैप सुनाती थी, इसकी थोड़ी हॉबी है ऐसा कुछ. तनीषा गाना गाना आता तो गाना भी सुनाती थी, तो ऐसे हम कनेक्टेड रहते थे.
मैम कहाँ गई? ऐसी बात बोली है, मैम ही रुक गई। पीपीटी में मुझे हेलो हेलो पीपीटी में मुझे हेडिंग और टेक्स्ट में ना स्क्रिप्ट लिख के आप लोग दे देते तो अच्छा रहता, ऐड कर देते जल्दी जल्दी। नहीं, डिजाइन रेडी करते हैं, पीपीटी में ना हेडिंग में क्या डालना है ना समझ में नहीं आ रहा, उसमें हम थोड़ा सर्च किए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसमें जल्दी करना है काम इसीलिए। हो सकता है, नहीं तो थोड़ा मिक्स हो जाएगा ना, इसीलिए फिर बाद में जाके फिर से एडिट करना पड़े, उतना टाइम लग जाएगा तो दिक्कत होगा ना। फिर से लास्ट में हम 8 बजे तक भेजेंगे डिजाइन करके, फिर दूसरे पर्सन को फिर उतना टाइम लग जाएगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वो कर दें, हो जाएगा। नहीं, लैपटॉप से कर रहे हैं।
नहीं पीपीटी पे नहीं करेंगे। ठीक है इमेज कर लेंगे। हाँ कोई जनरेट करेगा हेलो। हाँ कोई जनरेट करेगा इमेज तो उसका क्या करेंगे? हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो जी। हाँ जी बोलिए ना। पटना में हूँ अभी। कॉलेज नहीं बाहर हॉस्टल में। किन्हीं की काम में ट्रांसफर करना है। ठीक है 5 मिनट में 5 मिनट में मीटिंग में अभी सर। हाँ 5 मिनट मीटिंग है अभी। नहीं हंस रहे। नहीं मैंने तो पहले ही बोल दिया समझ में नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक।
मैं मेथोलॉजी का ही करूंगा, उसी का दो तो बहुत बार पढ़ा हूँ उसको। नहीं, उसी से थोड़ा कॉपी हुआ है, उससे भी कॉपी हुआ है, हम पढ़े थे। मेरे साइड मैंने जो भेजा था उससे भी थोड़ा मैच कर रहे हैं। वो पेपर तो कंप्लीट हो गया ना, उसमें तो ऐड करना अब कुछ नहीं बाकी है। और जो प्रेजेंट करेंगे उनको तो याद भी करना पड़ेगा बहुत सारा डाटा ना। आप ही करिएगा, हाँ। ठीक है। ठीक। एक अक्षिता वो मैसेज की थी। अक्षिता या नहीं, नहीं एक कोई मैसेज कर भी है। एक मिनट, हाँ अस्मिता। हाँ हाँ, उन्होंने ही मैसेज किया था अभी। बोले हम खुद ही बना लेंगे पूरा।
ठीक है, बाय।